नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो रिगार्डिंग आईआईटी कानपुर इंटरव्यू, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स आर कमिंग रिगार्डिंग द प्रोसीडियर। किसी को कॉल आया, इतने मार्क्स पे कॉल आ गया सर, इससे कम मार्क्स है, इसमें कॉल आ गया, मेरा ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी कॉल लेटर नहीं आया, क्यों नहीं आया? And also the procedure for your admission over there for different departments and also the written test syllabus date, everything सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ in this video. So stay tuned till the end of the video, and for more such informations, you know what you have to do. Just subscribe to my channel and hit the bell icon for daily notifications. तो बात करते हैं सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए सर जो एलिजिबिलिटी है दैट इज फॉर सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसका बैकग्राउंड है मैकेनिकल, केमिकल, एग्रीकल्चरल और सर कोई भी लाइक रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। लेकिन पॉइंट ये है सर, कॉल जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स वही है सर जो फर्स्ट चॉइस में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को रखा है। मतलब देखो, ये ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट के साथ ये है। सो देयर मेन मोटो इज टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स एक्चुअली हु आर एक्चुअली inclined to that subject, who has actually kept environmental engineering as the first choice. So and the procedure will be absolutely like direct admission based on the gate score if you belong to civil, chemical or environmental engineering department, like environmental science and engineering department. And for other applicants from like mechanical department or something like that, there will be full gate score, written test plus interview round. And in the written test, mainly mathematics of 10+2 level, actually +2 level will be asked, and the date is from 6th to 8th of May. Talking about geoinformatics department, many people have applied actually, especially those people who have actually undergone a counseling session with me. They have right now definitely appeared for the geoinformatics department. Geoinformatics department में भी सर कहानी यही है that you should have a BE in civil, geoinformatics, electronics, computer science, electrical, mining, aerospace, agriculture, whatever actually. But you have to put the geoinformatics department in the first choice. Then only directly based on gate score, it's going to be held actually. No interview in the geomatics in your geoinformatics engineering department, no written test over there. And talking about your geotechnical engineering department, those people who have kept geotechnical either in the first and the second choice, they have only got the invitation mail where full gate score plus written test plus interview will be done actually, right? Understanding. So the GATE civil engineering syllabus of geotechnical engineering as well as your engineering mathematics. So mathematics is playing a very important role, you understanding. Geotechnical engineering and engineering mathematics both are actually present over here, and 6 to 8 में के बीच में सर different dates में ये actually scheduled है। रिटन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट में सर जो क्वेश्चंस का लेवल होगा दैट इज ऑफ गेट लेवल ओनली। तो गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एक्चुअली डेफिनेटली वही प्रैक्टिस करके जाइए, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। व्हाट एवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू आर हैविंग एक्चुअली 10 ईयर्स का सारे के सारे क्वेश्चन गेट और ईएसी दोनों का प्रिपेयर करके आप जाइए फॉर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इफ यू हैव गिवन एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस में, तभी आपको मेल आया होगा। Talking about the next thing, that is your hydraulics and water resource engineering. Hydraulics and water resource engineering may be those people who have kept it in the first and the second choice. मान लो मैं एनवायरमेंट को फर्स्ट में रखा या जियोटेक को फर्स्ट में रखा, सेकंड चॉइस में रखा मैंने वाटर रिसोर्स को, हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स, स्टिल आई विल गेट एट माय कॉल एक्चुअली। तो यहाँ पे भी सर हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी सर कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट गेट स्कोर के बेसिस में एडमिशन है। टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सर दोज पीपल हु हैव केप्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आइदर इन द फर्स्ट और द सेकंड चॉइस, दे आर गेट स्कोर प्लस रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, तीनों चीजों के बेस में सर बेसिकली होगा। अब सर स्ट्रक्चर में जो सिलेबस है दैट इज अगेन गेट सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस एक्चुअली ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसे जियोटेक में था जियोटेक का सिलेबस, तो यहाँ पे भी सर प्रिपरेशन वही करना। आपको गेट का जो क्वेश्चन है, स्पेशली द 2 मार्क क्वेश्चन गाइस, वो सर देख के जाना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड, मतलब अच्छा एक स्टैंडर्ड होगा सर, क्योंकि आईआईटी समझ रहे हो ना, खुद अपनी जगह में बैठ के सर सारे प्रोफेसर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो लाइक थोड़ा बहुत वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट करते, इट्स नॉट लाइक वेरी वेरी इजी। तो गेट लेवल के क्वेश्चन सेटअप होगा, एंड एक्चुअली आप जो प्रीवियस ईयर है उसको जरूर सा देख लेना। अगेन द डेट इज फ्रॉम 6 to 8 में। टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ गेम हो गया लिटरली, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी सर कॉल सिर्फ उन्हीं लोगों को आया है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को फर्स्ट चॉइस में रखे, नॉट इवन इन द सेकेंड चॉइस, उसको फर्स्ट चॉइस में ही रखे सर।
एंड यहाँ पे भी गेट स्कोर और रिटन टेस्ट दोनों चीज होगा, नो इंटरव्यूज विल बी देयर। एंड रिटन टेस्ट में सर बहुत सारे लोग फंस गए बेसिकली बिकॉज ऑफ द थिंग दैट इज यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सर पूछा जा रहा है। एंड वहां पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इंजीनियरिंग लर्न एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ऑब्वियस बात है, आप सोचो कि इंजीनियरिंग लर्न एट मतलब सर सिविल इंजीनियरिंग तो सर बहुत सारे हम लर्न किए। और यहाँ पे सर जो है आप देखो, यहाँ पे एलिजिबल है सिविल, एरोस्पेस, मैकेनिकल, तीनों ब्रांच एलिजिबल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इंटरव्यूज। तो यूर अंडरस्टैंडिंग, तो इंजीनियरिंग लर्न एट अंडर ग्रेजुएट लेवल मीन्स व्हाट। बेसिकली आप लोग सर जो भी सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं या फिर जो भी, उनका सर देखना फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज में जब पढ़े हो तो वहां पे एक जनरल इंजीनियरिंग या कॉमन इंजीनियरिंग टाइप ऑफ चीजें होता था, जिसमें लाइक कुछ फिजिक्स होता था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होता था, कुछ लाइक मैकेनिकल का कुछ पार्ट था, लाइक एक मिक्स वाला चीज होता था, लाइक जनरल इंजीनियरिंग टाइप ऑफ थिंग। यहां पे वो चीज पढ़ना है आपको। सेकेंडली द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सर +2 लेवल का आपको पढ़ना है। मेरा सजेशन ये है कि आप लाइक गूगल में या फिर कहीं पे भी लाइक मिल जाता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का +2 लेवल का कोई एक नोट्स, किसी का भी लाइक नोट्स, टॉपर्स नोट्स हो, किसी का भी नोट्स हो, समथिंग लाइक दैट, वो जरूर एक बार आप कलेक्ट कर लो, वहां से जो बेसिक फॉर्मूलाज एंड ऑल दिस थिंग्स ये देख लो। एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, आप जो गेट की तैयारी कर चुके हो, गेट 2022 यू हैव प्रिपेयर्ड एक्चुअली, वहां पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली कहीं से भी आप तैयारी कर चुके हो तो वहां पे आपको ये सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट में ही, एक्चुअली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पार्ट में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया है, तो वो चीज़ आपको सर पढ़ना है। सो दिस टू थिंग्स एक्चुअली यू हैव टू स्टडी। एंड यहाँ पे सर एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट है, तो एक ही दिन रुकना है, दैट इज 6th में। जाओ रिटन टेस्ट दो, वापस आ जाओ। अब सर गेम देखो किस किस के साथ हो गया। जो लोग सर कुछ महान लोग थे जिनका मानो गेट स्कोर क्या है, अराउंड योर कम है, मान लो ठीक है 700 है, समथिंग लाइक दैट। अब जो लोग ये काउंसलिंग सेशंस अटेंड नहीं किए मेरे साथ, लाइक दोज पीपल हु डिडंट अंडरगो द काउंसलिंग, या फिर किसी और के साथ एक्चुअली लाइक कोई एक्सपर्ट एडवाइस वो नहीं लिए, उनके साथ गलती यही हो गया सर, गेम वहां के साथ देखो यही हो गया उन लोगों के साथ। मान लो किसी के हिसाब से सर, जो उनको गेट स्कोर के हिसाब से जो उसको ब्रांच मिलना चाहिए था वो था मान लो जियो इन्फॉर्मेटिक्स या एनवायरमेंट, ठीक है। अब वो कट ऑफ देख के सर स्ट्रक्चर से शुरू किया, स्ट्रक्चर, उसके बाद जियोटेक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद, समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है, उनको एक्चुअली मान लो मिलना था क्या, एनवायरमेंट, शायद मिल भी जाता उसको, आईआईटी कानपुर में पढ़ना था मान लो किसी को, उसको मिल भी जाता एनवायरमेंट या वाटर रिसोर्स, बट द पॉइंट इज दैट वो शुरू किया था स्ट्रक्चर से। अब पॉइंट ये है कि सर स्ट्रक्चर को अगर आप फर्स्ट और सेकंड चॉइस में रखोगे तभी आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अब स्ट्रक्चर से इंटरव्यू का उनका कॉल भी मान लो आ गया, या ट्रांसपोर्ट से किसी को ट्रांसपोर्ट चाहिए था, ट्रांसपोर्ट पसंद भी था, कट ऑफ के चक्कर में स्ट्रक्चर को पहले रख दिया। पता नहीं क्यों, क्या लॉजिक दिमाग में घूमता है आप लोगों के, हरदम हर कोई इंस्टीट्यूट में स्ट्रक्चर को पहले रख देते हो, क्यों? अगर पसंद है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई मार्क्स समझ के थोड़ा रखो, अच्छा है। लाइक आपको पता है सर 700 या 600 स्कोर में, गेट स्कोर में आपको जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर। सो लाइक एंड इंटरव्यू का जो वेटेज होगा दैट इज अराउंड योर 25 to 30% विल बी द इंटरव्यू वेटेज। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट दोनों मिला के सर टोटल अराउंड 30% वेटेज विल बी देयर, सो बी केयरफुल। सो यस, जिनका सर नहीं हुआ है क्या मैं बताऊं एक्चुअली, बट एनवायरमेंट या वाटर रिसोर्स को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, आई एम क्वाइट श्योर कि वो एनवायरमेंट वाटर रिसोर्स ट्रस्ट में मतलब पढ़ना चाहते थे लिटरली, तो इसीलिए वो रखे हैं। तो लाइक एनवायरमेंट पे मैं जैसे कानपुर में जब अप्लाई किया था, एक ही ब्रांच में मैं अप्लाई किया था एनवायरमेंट, तो मेरा इसलिए डायरेक्ट एडमिशन कॉल आ गया था। सो समथिंग लाइक दैट ऑल्सो यू कुड हैव डन ऑल्सो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मेनली ऑल द पीपल जिनका लाइक हो चुका है। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप कहाँ से लोगे ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन तो मेनली ये है सर सारे ब्रांचेस के लिए। मैथ का जो 10+2 लेवल का सर कोई भी बुक जुगाड़ कर लो किसी से भी, या फिर नोट्स +2 लेवल का मैथ नोट करके सर्च करो, एटलीस्ट फॉर्मूला उसमें से कई सारी चीज़ें कॉमन भी आता है हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ, लाइक प्रोबेबिलिटी पार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, मैट्रिक्स पार्ट, लीनियर अलजेब्रा का पूरा पार्ट हम 11th-12th में पढ़ते थे, यहाँ पे वो है लॉगरिदम का पार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारे हैं। तो मेनली प्रोबेबिलिटी, लॉगरिदम एंड लीनियर अलजेब्रा पे फोकस करना इन द मैथमेटिक्स पार्ट, एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट में भी सर फोकस करना, एंड काइनेमैटिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसमें भी सर फोकस करना, ओके, इन फिजिक्स। बाय गाइस, टेक केयर, फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट,
एंड मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फॉर मोर जॉब अपडेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग. Take care guys. Meeting you in my next video. Stay safe. Take care.